Hello, my dear friends. As you can notice from the topic, the growth of nuclear weapons and call for disarmament. It is not hidden from us that there is a growing importance right now for nuclear disarmament. There is a hostile situation created in different parts of the globe where no country is ready to trust another country. It is very much evident after the episode of Iran and United States of America. It is also very much evident from the episode of Israel and Palestine conflict. It is also very much evident from the Zaporizhia crisis that recently was seen in Ukraine, where Russia was operating a nuclear power plant, and that basically could have gone out of control. Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA was a deal negotiated between Iran and United States of America in the year 2015, whereby Iran was to basically allow United States of America and IAEA to keep a watch on its nuclear programs. Iran happens to have a nuclear technology, but it is only going to use it for peaceful use, peaceful means. It cannot use that same technology to develop a nuclear weapon. However, America withdrew from this treaty and imposed a lot of sanctions on Iran. After that, Iran is going out of control. Now, when Iran is going out of control, Saudi Arabia definitely would not want to stop. Definitely, Turkey also would not want to stop. They all want to acquire nuclear power. North Korea is one such country which has a lot of nuclear potential. However, it is not really clear as to how many weapons it has because there is no international agency that can verify that. North Korea is not a part of this. Similarly, you will find the situation in India. India is situated in a neighborhood where Pakistan and China combined have 3 to 4 times higher numbers of nuclear weapons as compared to India. In that state, facing such scenario, such existential crisis scenario, it is incumbent upon India not to give up its nuclear weapons. So today in this particular video, we are going to discuss the growth of nuclear weapons, India's nuclear doctrine, and the call for disarmament. This video has been divided into two parts. This is the first part of the video. You kindly subscribe to the channel, like the video, hit the bell icon so that you are aware as soon as the second update of this particular video comes. Moving to the particular fact that इंडिया कंसीडर्स न्यूक्लियर वेपन एज ए नेसेसरी ईवल, यानी कि इंडिया ये कहता है कि एक ऐसा ईवल है जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम इसका इस्तेमाल ना करें। पूरी दुनिया में 9 ऐसे देश हैं, ऐसी 9 शक्तियां हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास इस डेटा के हिसाब से 6185 न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं, फॉलोड बाय यूके, फ्रांस, इसराइल, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। दीज आर द 9 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं। सिर्फ इन 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स का पोजीशन है। बाकी आप इमेजिन कर सकते हैं 189 से 190 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको पता भी नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और जिनके पास नहीं है। जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो यूनाइटेड नेशंस में इन 9 देशों से एक ही सवाल पूछते हैं कि अगर आपने न्यूक्लियर वेपन यूज किया एक दूसरे के अगेंस्ट, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि उस आग की लपटों में हम शामिल नहीं होंगे। इसलिए पूरी दुनिया चाहती है, while the world wants to promote the use of nuclear technology for energy security, the trust deficit between nuclear weapon states and non-nuclear weapon states is also growing large. And this has to be addressed. This has to be addressed in the 21st century because ये दौर नए मॉडर्न वॉरफेयर का है। मॉडर्न वॉरफेयर में आप सिर्फ और सिर्फ गोली और बारूद और बम से नहीं अटैक कर सकते हो। There are a lot of parallels that will be drawn. There are use of weapons of mass destruction, and nuclear weapon is such a weapon which is having a potential to cause widespread destruction. The Iran problem. As you can notice in this particular image, आपको दिखाई दे रहा है कि ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर बैठे हुए हैं और ईरान के चीफ उनसे कह रहे हैं साइन करना है एनपीटी, क्यों नहीं साइन करता है एनपीटी। ये एनपीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो लीगली बाइंडिंग सैंक्शंस लगाता है।
ये कहता है कि जिन भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या कम करनी है और ये इंश्योर करना है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फर्दर मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करने में नहीं करेंगे। ऐसे में यह जरूरी है कि यह न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी सिर्फ उन्हीं कंट्रीज पर लागू होती है जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उन कंट्रीज पर लागू नहीं होती जिनके पास अभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड नहीं है। यानी कि ईरान एक ऐसा देश है जो कि एनपीटी से गवर्न नहीं है, पर इजराइल जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काफी समय से है वो एनपीटी के अंडर गवर्नड है। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इंडिया ने कोशिश की थी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को वो साइन करे अगर उसमें वेरीफिएबल डेटा इंक्लूड किया जा सके, यानी कि ये इंश्योर किया जा सके कि किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होगा। लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बेसिकली 5 देशों को अलाउ करती है न्यूक्लियर वेपन्स रखने के लिए, बाकी सभी देशों को मना करती है। ऐसे में इंडिया ने भी यही कहा, इजराइल ने भी यही कहा, पाकिस्तान ने भी कहा कि हमें इस ट्रीटी पे भरोसा नहीं है। ईरान पूरी दुनिया के सामने डबल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बिगेस्ट एग्जांपल है। किस तरीके से जिस एनर्जी से आप क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकते हो, पावर जनरेट कर सकते हो, आप उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके यूरेनियम को एनरिच करके मिलिट्री ग्रेड लेवल के न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हो। द फेलियर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू रीनेगोशिएट जेसीपीओए, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में ईरान को वापस ना ला पाना, ये अमेरिका की विफलता है और इसकी वजह से पूरे गल्फ रीजन में एक सिक्योरिटी क्राइसिस का माहौल क्रिएट हो चुका है। और ये सिर्फ ईरान के साथ प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर प्रॉब्लम इसराइल पैलेस्टीन के साथ देखने को मिलती है, सिमिलर प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान के साथ देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंगली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अगर हम पॉजिटिव यूजर्स की बात करें तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एक छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर का इतना बड़ा पोटेंशियल है कि वो हमारी कोल डिपेंडेंसी को खत्म कर सकता है। भारत में जो बिजली पैदा होती है वो आप इस डेटा के हिसाब से 60% बिजली हम कोयले से जनरेट करते हैं, जिसमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी का योगदान है। It is only the 2% of India's energy that is created by using nuclear reactors. India has around 6 big major nuclear reactors, in which Kudankulam is the India's biggest nuclear reactor. India also has a aggressive target to be dependent on nuclear technology for generation of vast amount of energy, electricity by 2052. By 2052. India generates 3% from biopower, 10% from wind, 12% from solar, 12% from hydro, 2% from small hydropower. Total installed renewable capacity is close to 388.1 gigawatt. India has set a target that India will achieve 500 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. And you can imagine how amazing potential, big potential this nuclear technology has. Interestingly, 17% of the global power is also generated from the nuclear energy using the fission reaction. However, it is the same reaction which can be exploited at military grade levels to create nuclear weapons, or you can say to create a nuclear bomb. I am sure you all are aware about the Manhattan Project. Manhattan Project. It was the world's first project of United States of America of 1952, where the two nuclear bombs were formed, or you can say manufactured, the little boy and the fat boy, which were basically used in Hiroshima and Nagasaki in 1945. So this was the period when the world realized that पूरी दुनिया का फेट, पूरी दुनिया की किस्मत इन छोटे मोटे 9 देशों की मुट्ठी में नहीं छोड़ा जा सकता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जेबी ओपेनहाइमर चीफ साइंटिस्ट थे, जैसे हमारे यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के चीफ साइंटिस्ट वो थे। इस यूज के बाद पूरी दुनिया को समझ में आया कि न्यूक्लियर वॉर को, न्यूक्लियर रेस को, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स को रीशेप करने की जरूरत है। तो जिन भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सामने आए, उन्होंने प्लेज लिया कि हम अपनी अपनी एक न्यूक्लियर पॉलिसी बनाएंगे और पूरी दुनिया के सामने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कभी भी ना करें। तो पूरी दुनिया ने उनसे ये कहा, जब आप ये आश्वासन दे सकते हैं, व्हेन यू कैन गिव अस दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स इवन इन द लास्ट रिजॉर्ट, व्हाई यू जस्ट कांट गेट रिड ऑफ देम?
क्यों आप ये नहीं करते कि आप ये कह दें कि न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास है ही नहीं? तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, नॉन प्रोलिफरेशन है। नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि ये होना कि हम किसी भी तरह से नए मॉडर्न वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। पूरी दुनिया कह रही है डिसआर्म करिए खुद को, जो हैं आपके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स जो आपके हैं, आप इनको ख़त्म करिए, डिसआर्म थे। सो अकॉर्डिंगली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक ट्रीटी डिज़ाइन करने की बात की गई, जहां पे नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाएगी। इसकी शुरुआत हुई ENDC से, यानी 18 नेशंस की एक कमेटी बनाई गई डिसआर्मामेंट के ऊपर, जिन्होंने ना 1965 से 1968 के बीच में इन 3 सालों में एक तरह का एग्रीमेंट क्रिएट करने का कोशिश किया, जिसको हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जानते हैं। ये पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा जॉइंट एफर्ट है जहां पे ये कोशिश किया गया कि न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अवे किया जा सके। लेकिन इसमें 9 देशों में से इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, इन देशों ने साइन करने से मना कर दिया, जबकि इंडिया उन देशों का हिस्सा था जो कि ये नेगोशिएट करा रहे थे, ENDC का पार्ट था। फिर ENDC का एक अगला जो हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, वो बेसिकली आपको दिखाई देगा कन्वेंशन ऑन डिसआर्मामेंट। कन्वेंशन ऑन डिसआर्मामेंट बेसिकली एक ऐसा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक ऐसा बॉडी है, या कह लीजिए एक ऐसा डेलिबरेटिव मैकेनिज्म है, जहां पे मेंबर कंट्रीज आती हैं, बात करती हैं और कोशिश करती हैं कि किस तरीके से हम डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सब चल रहा था पूरी दुनिया में, पर इंडिया को ये पता था कि हम शेरों के बीच में रह के अपने आप को कमजोर मजबूत नहीं कह सकते, हमें भी मजबूत बनना पड़ेगा। तो इंडिया ने 1974 में बेसिकली इंडिया ने 1974 में सबसे पहले स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और पोखरण में अपना सबसे पहला स्माइलिंग बुद्धा नाम का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। और इसके बाद पूरी दुनिया में काफी ज्यादा विद्रोह हुआ इंडिया का। अ लॉट ऑफ कंट्रीज क्रिटिसाइज्ड इंडिया फॉर दिस पर्टिकुलर मूव, एंड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. Nuclear Supply Group is basically a group of around 48 countries which are basically transferring nuclear technologies to the countries who do not have adequate nuclear technology. Now, it was stated by Nuclear Supplier Group that they will not provide adequate technology, required technology to India. This was highly criticized by Russia as well as America, but China supported this. Then again, after a few years, India started its Operation Shakti. Under Operation Shakti, we tested 5 nuclear weapons in 1998 at the very same site under Pokhran 2. Now, India was recognized as a nuclear power globally. Earlier, they were not ready to recognize India as a nuclear power. In 1998, when Atal Bihari Vajpayee, as you can see in the photograph, tested all these 5 nuclear weapons successfully, India was declared to be a nuclear state. You can say contradictory, or you can say contrary to what in 1998 Atal Bihari Vajpayee ji was planning or had done that. 10 साल पहले राजीव गांधी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यह बात कही थी कि पूरी दुनिया को हमें न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाना है। अमेरिका ने इंडिया का कंडेमनेशन किया था कि आप कहते कुछ हो, मानते कुछ हो, करते कुछ और हो। हालांकि बहुत सारे देशों ने इंडिया के इस स्पीच का या इस स्टैंड का सपोर्ट किया, जिसको हम राजीव गांधी एक्शन प्लान के नाम से भी जानते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें तो ये 2003 में इंडिया ने अडॉप्ट करी, यानी कि पहले हम 1998 में खुद को न्यूक्लियर पावर की तरह के रिकॉग्नाइज करवाना चाहते थे, जो हमने रिकॉग्नाइज कर दिया, और 2003 में हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अडॉप्ट करी। There are 4 to 5 important points about India's nuclear doctrine, which is very interesting if you will read it closely. India has stated that a nuclear doctrine is no first use policy, but no first use policy is not always absolute. ऐसा नहीं है कि हम पहले आपके ऊपर अटैक करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, पर यह भी नहीं है कि आपके अटैक होने का इंतजार करेंगे। इंडिया ने कहा विल यूज क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। जब इंडिया ने 2003-2004 में अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पूरी दुनिया के सामने रखी, तो इंडिया ने पूरी दुनिया से यह कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर हम पे अटैक हो जाएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको भी हम उसी तरीके से जवाब दें। यानी कि हम चाहते हैं कि आपके मन में यह भय बना रहे कि हम पीछे नहीं हटेंगे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से। इसके चलते चाइना और पाकिस्तान
जो कि दोनों कंबाइन करें तो इंडिया से के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और दोनों की काफी अच्छी गहरी गहरी दोस्ती है 1962 के बाद से। वो दोनों भी इंडिया के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की शायद गलती ना करें। इसी को कहते हैं हम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, यानी कि बातों से डरा के सामने वाले को रोक के रखो। लेकिन आज 2022 के दौर में भारत के इस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के अंदर क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस जो है उसको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलने की जरूरत है, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से। भारत ने यह भी कहा कि हम नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, यानी कि ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उनके अगेंस्ट हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भारत के सामने यह भी चुनौती आई कि अगर वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट किसी और तरह का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, किसी और तरह का WMD यूज करे, जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, तो क्या करना चाहिए भारत को। तो भारत ने जवाब दिया अपनी इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ही कि ऐसे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो कि हमारी तरफ बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन का इस्तेमाल करेंगे, हम 1 मिनट भी नहीं कतराएंगे, 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे उनके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का। तो इस तरीके से इंडिया ने अपने आसपास के सारे कंट्रीज को यह बता रखा है कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं आपके विपरीत। लेकिन अगर आपने सोचा हम पे इस्तेमाल करने का, तो फिर ध्यान रखिएगा कि हम भी नहीं चुकेंगे। इन सब को बदल के इंडिया ने बड़े ही रिसेंटली अपनी पॉलिसी में अपडेट किया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद जब राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, तब उन्होंने ये बेसिकली स्पीच में कहा कि इंडिया का जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ये परमानेंट नहीं है। इंडिया अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बदलेगा। और अभी जो फरक देखा जा रहा है, करंटली इंडिया का जो स्टैंड है पूरी दुनिया के सामने, वो मैक्सिमम अश्योर्ड डेटरेंस का है। इसको हम लोग मैट ट्रीटी भी कहते हैं, मैट डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। मैक्सिमम अश्योर्ड डेटरेंस का मतलब यह है कि आप समझ लीजिए बस कि आपने हमको अगर सुई चुभाई तो हम आपको भाला चुभाएंगे। यानी कि फिर हमारी तरफ से किसी भी तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, किसी भी तरह का ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन के प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखने का आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा। क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम बर्बाद हुए हैं तो आप हमसे ज्यादा बर्बाद हो। तो ऐसे इस तरह की सिनेरियो क्रिएट करने के बाद, इस तरह की बातें क्रिएट करने के बाद, इंडिया के नेबर्स को, खास तौर से पाकिस्तान और चाइना को, यह बहुत अच्छे से पता है कि वो ये काम नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान और चाइना से यह पॉसिबल है कि इंडिया में न्यूक्लियर वेपन्स डाले जा सके, गिराए जा सके? जी हाँ। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटोग्राफ में, अग्नि 3 है। ये भी एक तरह की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि दिल्ली में बैठे बैठे आप लाहौर जैसे 5 शहरों को पाकिस्तान में आराम से खत्म कर सकते हैं। और सिमिलरली पाकिस्तान भी यही कहता है कि हमारे पास भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। पूरी दुनिया ने एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम नाम की एक व्यवस्था बनाई। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम नाम की व्यवस्था के अंदर यह कहा गया कि आपको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो रेंज है उसको सीमित करना पड़ेगा। 500 से 600 किलोमीटर ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है आपके मिसाइल की रेंजेस को, ताकि आप कहीं पे यहां से बैठे बैठे किसी दूसरे देश में अटैक ना कर पाए। और अगर अटैक करें तो आपको उस कंट्री के काफी नजदीक जाना पड़ेगा, और काफी नजदीक जाना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कंट्री आपकी पोजीशनिंग को, आपके मूवमेंट्स को नजर में रखेगी और उसको पता चल जाएगा कि शायद आप न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। तो इस तरीके से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक एक तरह से एक दूसरे पे लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह की लगाम में बात करते हैं, दूसरी ट्रीटी है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है, जिसको अगले वीडियो के पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो के पार्ट में हम नए तरह की भी ट्रीटी डिस्कस करेंगे जहां पे इंडिया कह रहा है कि एनपीटी और सीटीबीटी गुजरे जमाने की बातें हैं, पुराने दौर की बातें हैं। हमें एक नया ट्रांसपेरेंट, वेरीफिएबल, यूनिवर्सल एग्रीमेंट क्रिएट करने की जरूरत है बाय वे ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जहां पे हम ये इंश्योर कर सकें कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इवन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, कोई भी किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन क्रिएट नहीं करेगा। इंडिया को यह कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है, कई सारे भारतीयों का भी ऐसा मानना है कि भारत को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलना चाहिए, क्योंकि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिलायबल नहीं है। तो यहां पे एक बात निकल के आती है कि इंडिया स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी, ये स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी एक ऐसा पॉस्चर है कंट्री का जो कि ये बताता है कि हमारे एडवर्सरीज को पता है कि हमारी ताकत क्या है।
तो जब हमारे एडवर्सरीज को पता है कि हमारी ताकत क्या है, तो वो हमारे तरफ उस तरह का फोर्स यूज करने में थोड़ा सा डरेंगे। इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जिसमें मैक्सिमम एश्योर्ड डिटरेंस को जोड़ा गया, वो इसी स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी को साउथ एशियन रीजन में मेंटेन करने की कोशिश करता है। इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं डेटा के हिसाब से, पाकिस्तान के पास 160 और चाइना के पास 300 से भी ज्यादा। हालांकि इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी तरह का ऑडिट प्रोसेस नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसा बॉडी नहीं है जो कि इन कंट्रीज पे जाके समय समय पे विजिट कर सके। क्योंकि अगर आपको इन कंट्रीज के न्यूक्लियर वॉरहेड्स गिनने हैं, तो आपको इन कंट्रीज को एक एग्रीमेंट के अंदर लाना पड़ेगा, जो कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा। हालांकि इन कंट्रीज ने साइन नहीं किया है। ये कोऑपरेट तो करते हैं, बट अपने डेटास को डेफिनेटली मिस रिप्रेजेंट करते होंगे। तो चाइना अगर 300 कह रहा है, तो हो सकता हो चाइना के पास 400 हो। पाकिस्तान 160 कह रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान के पास 260 हो। इंडिया 150 दिखा रहा है, तो हो सकता है इंडिया के पास 350 हो। नो बडी नोज द ट्रूथ अबाउट दीज डेटास। इसकी वजह से पूरे साउथ एशिया में एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट सा क्रिएट हो चुका है। और चाइना और पाकिस्तान दोनों का कहना है कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे हमें भरोसा नहीं है। तो जब आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे जब आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टैंड है, जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, वो आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से काफी अलग सुनाई देते हैं, तो ऐसे में ये कंट्रोल कर पाना कि कोई भी दूसरी कंट्री न्यूक्लियर रेस में शामिल नहीं होगी, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपनी अभी की वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। हम इसी पर्टिकुलर कंटिन्यूएशन में आपको सेकेंड वीडियो में मिलेंगे, जहां पे हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।